प्यारे बच्चों को सप्रेम नमस्कार। मैं A.T. कृष्णा, सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम कर्नाटक संपदा इस निबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर कर्नाटक भारत मैप में दिखाई दे रहा है बच्चों। अच्छा, अब हम शब्दार्थ की ओर जाएंगे। आबादी, सवारना, छोर, आवली, प्रौद्योगिकी, उपलब्धि, इस्पात, विपुल, आगार, दृष्टांत, अनमोल। अब एक एक करके हम अर्थ जानेंगे। आबादी यानी जनसंख्या, सवारना सजाना, छोर किनारा, दಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಚು, आवली कतार साಲು, प्रौद्योगिकी तकनीकी टेक्नोलॉजी, उपलब्धि प्राप्ति लभ्यते ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, इस्पात फौलाद उक्कु, विपुल अधिक बहಳ, आगार घर, दृष्टांत उदाहरण, अनमोल अमूल्य। अच्छा, पाठ का आशय जानेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से अनुराग और उस पर अभिमान करना सहज है। जननी जन्मभूमिश्च ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೂಕ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಸಹಜ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಮಾರಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೈ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು. यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की प्रगति अपार है. इलिया प्राकृतिक नोट, साहित्य वैभव ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಅಪಾರವಾದ್ದು. देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. इस संदर्भ में प्रस्तुत पाठ अत्यंत प्रासंगिक एवं सार्थक है. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕವಾದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. कर्नाटक संपदा. प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತೀತ ವೈಭವ ಅಂದರೆ ಗತವೈಭವ, ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿಯ ವಿಕಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶ का ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ है. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ. यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर व समृद्ध बनाया है. प्रकृति ಮಾತೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು. कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा ನಯನ ಮನೋಹರ है. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೋಟ ನಯನ ಮನೋಹರ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. कर्नाटकದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. ಇದೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತದ ಸಾಲನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗಿರಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ದಕ್ಷಿಣ ಮೇ ನೀಲಗಿರಿ ಕಿ ಪರ್ವತಾವಲಿಯ ಶೋಭಾಯಮಾನ है. ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲನ್ನು ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಾವಳಿಗಳು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಲಿ ಜಾತಿ है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. और इसकी राजधानी बेंगलुरु है. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು.
यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಾ का ही नहीं, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹಾಗೆ HAL ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, HMT ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ITI ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी बृहत संस्थाएं हैं. ಮೊದಲಾದಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇಸೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ भी कहा जाता है, ಇದನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ CV ರಾಮನ್, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ರವರು, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ CNR ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ. CV ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್. CNR ರಾವ್ ರವರು ಓರ್ವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ. सन 2013ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ CNR ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಗರಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮೊದಲಾದಂಥ ಅನೇಕ ಧಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ಅದಿರುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಭದ್ರಾವತಿ में कागज़, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं. ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೊದಲಾದಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज़ उत्पादन के अनेक कारखाने हैं. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಗಂಧದ ಬೀಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. यहाँ चंदन का तेल, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನ್, ಗಂಧದ ಸಾಬೂನು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ತಥಾ ಕಲಾಕೃತಿಯಾं भी बनाई जाती है, ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, ತುಂಗಭದ್ರಾ आदि अनेक नदियां बहती है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೊದಲಾದಂಥ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं. ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. इनसे हज़ारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ನದಿಗಳ ಜಲಾಶಯಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है. ಜೋಗ, ಅಬ್ಬಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಜಲಪಾತಗಳು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅನೋಖಿ है. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮೇ ಜೋ ಮಂದಿರ है. ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂದಿರಗಳಿವೆ
ಉನ್ಕಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ और ವಾಸ್ತುಕಲಾ ಅದ್ಭುತ है ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಕಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ಬೇಲೂರ್ ಹಳೆಬೀಡು सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನಿವೆ ಅವು ವೇ ಸಜೀವ ಲಗ್ತಿ ಹೇ, ಅವು ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಯೇ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಯ, ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಮೇ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ್ ಪುರಾಣೋಂ ಕಿ ಕಹಾನಿಯ ಸುನಾತಿ ಹೇ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ गोमटेश्वरನ ಏಕಶಿಲೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ. जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है, ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಕೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಕಿ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ನ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪಿಸು ಮಾತಿನ ಮೊಗಸಾಲೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಸ್ತುಕಲಾ ಕಾ ಅದ್ವಿತೀಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇ, ಅದು ವಾಸ್ತುಕಲೆಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಕಾ ರಾಜಮಹಲ್, ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಭವ ಕಾ ಪ್ರತೀಕ ಹೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕ ಅದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್, ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾಜಮಹಲ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾಜಮಹಲ್ ಕಾ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾಜಮಹಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಹೇ, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದುದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಗಂಗಾ, ಕದಂಬ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, चालुक्य, होयसळ, ओडेयर आदि राजवंशजों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्री वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. गंगा, कदंब, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಚಾಲುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಒಡೆಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶಜರು ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕರು, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಾದೇವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮೊದಲಾದಂಥ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರೋं ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಸರ್ವಜ್ಞರಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸ್, ಕನಕದಾಸ್ ಆದಿ ಭಕ್ತ ಕವಿಯೋं ने ಭಕ್ತಿ, ನೀತಿ, ಸದಾಚಾರ के गीत गाए हैं. ಪುರಂದರದಾಸ, ಕನಕದಾಸ ಮೊದಲಾದಂಥ ಭಕ್ತ ಕವಿಗಳು ಭಕ್ತಿ, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು, ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है. पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, ರಾಘವಾಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾದಂತಹ ಕುವೆಂಪು, ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ और ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್. ನೋಡಿ, ಈ 8 ಜನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೆ ಅಲಂಕೃತ ಹೇ, ಕವಿಗಳು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. यह कन्नड़ भाषा, संस्कृति तथा कन्नड़ के लिए ಗೌರವ का ವಿಷಯ है. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. अब कुछ याद रखने वाली बातें बच्चों. जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी. तो कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है. कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली
लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सर CV रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी, नारायण मूर्ति आदि दिग्गजों ने कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। डॉक्टर CNR राव जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं यहाँ मिलती है। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इतना ही नहीं, चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। चंदन का आगार कहते हैं कर्नाटक को। चंदन का तेल, साबुन, कलाकृतियाँ भी यहाँ बनाई जाती है। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि नदियाँ बहती है, जिन्हें बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इनके जलाशयों से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर, हड़ेबीड़, सोमनाथपुर के मंदिरों बेलूर, हड़ेबीड़ों, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। वे सुंदर मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेळगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। गंगा, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसळ, वडेयर आदि राजवंशजों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बका देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विक्रु गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि है। एक वाक्य के प्रश्नोत्तर जानेंगे बच्चों। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक में दक्षिण से उत्तर तक फैली पर्वतमाला को पश्चिमी घाट कहते हैं। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? कर्नाटक में जोग, अब्बी, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात हैं। श्रवणबेळगोला की
गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम कागज, लोहा और इस्पात। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान कौन सा है? विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी। अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है। अब 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर जानेंगे। कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? कर्नाटक की प्रमुख नदियां कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। प्रमुख जलप्रपात है जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि। कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विक्रु गोकाक, UR अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार। बांध और जलाशयों के क्या उपयोग है? नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंश गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, वडेयर आदि। बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहद संस्थाएं हैं? बेंगलुरु में HAL, HMT, ITI, BEL, BHEL, भारतीय विज्ञान संस्थान आदि बृहद संस्थाएं हैं। अब 4-6 वाक्यों के प्रश्नोत्तर देखेंगे। कर्नाटक के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर व समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियाँ शोभायमान है। कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुरा के मंदिरों की मूर्तियाँ सजीव लगती हैं। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुरा के गोल गुंबज वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन क्या है? कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने दया व धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास
आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। रन्ना, पंपा, पोन्ना, हरिहरा, कुमारव्यासा, राघवांका आदि ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। कुवेंपु, बेंद्रे, कारंत आदि 8 दिग्गज ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकार हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्नाटक को डैश का आगार कहते हैं। चंदन। गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और डैश का संदेश दे रही है। शांति। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के डैश का प्रतीक है। वैभव। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के डैश का प्रतीक है। वैभव। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की डैश फैलाई है। कीर्ति। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ। जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। जगन मोहन अरमನೆಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ। वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। वचनकार बसवಣ್ಣನವರು क्रांतिकारी समाज सुधारकरागिद्ದರು। अनुरूप शब्द दक्षिण से उत्तर के छोर की पर्वतमाला पश्चिमी घाट, दक्षिण की पर्वतावलियां नीलगिरी। कर्नाटक चंदन का आगार, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी। सी.वी. रामन नोबेल पुरस्कृत, सर एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न। भद्रावती लोहे और इस्पात, मैसूरू चंदन का तेल। कावेरी नदी, जोग जलप्रपात। बेलूरू शिल्पकला, गोल गुंबज वास्तुकला। सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल प्राच्य वस्तु संग्रहालय। कृष्णदेवराय शासक, राष्ट्रकूट राजवंश। बसवಣ್ಣ वचनकार, कनकदास भक्त कवि। पंपा प्राचीन कवि, कंबार आधुनिक कवि। अब पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पर्वत, आद्री, पहाड़, गिरी। सागर, समुद्र, वारिधि, सिंधु। आगार, घर, भंडार, खजाना। जल, पानी, वारी, नीर। आकाश, आसमान, नभ, व्योम। कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। सुंदर, कुरूप। विदेश, स्वदेश। आदि, अंत्य। सजीव, निर्जीव। सदाचार, दुराचार। आयात, निर्यात। अन्य वचन शब्द संधि, संधियां। उपलब्धि, उपलब्धियां। कृति, कृतियां। नीति, नीतियां। संस्कृति, संस्कृतियां। पद्धति, पद्धतियां। अब हम संधि विच्छेद करके संधि का नाम जानेंगे बच्चों। दिग्गज, दिक प्लस गज व्यंजन संधि। पर्वतावली, पर्वत प्लस आवली दीर्घ संधि। संग्रहालय, संग्रह प्लस औलय दीर्घ संधि। जलाशय, जल प्लस आशय दीर्घ संधि। जगन मोहन, जगत प्लस मोहन व्यंजन संधि। सदाचार, सत प्लस आचार व्यंजन संधि। अत्यंत, अति प्लस अंत यण संधि। विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास।
जलप्रपात, जल का प्रपात, तत्पुरुष समास। राजवंश, राजा का वंश, तत्पुरुष समास। राजमहल, राजा का महल, तत्पुरुष समास। अब सही विकल्पों को रेखांकित करने कहा गया है। तुंगभद्रा नदी इन राज्यों में बहती है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति का निर्माण इन्होंने कराया था: चावुंडराया। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत प्रथम कन्नड़ साहित्यकार ये हैं: कुवेंपु। कन्नड़ भाषा के प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत साहित्यकार हैं गोविंद पै। अर्थ समझाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तक यानी सीमा, पहले बहुत दूर तक चलकर पाठशाला जाना पड़ता था। थक यानी थकान, मजदूर लोग काम करते करते थक जाते हैं। चोर, चुराने वाला, पुलिस चोर को ढूंढते हैं। छोर यानी सीमा, यहाँ नगर का छोर ख़त्म होता है। बात, वचन, हमेशा मधुर बातें बोलनी चाहिए। भात, खाना, भात तैयार हुआ है। काल, मृत्यु, उसकी काल आ पहुंची, वह मर गया। खाल, चमड़ा, बटुए शाम के खाल से भी बनते हैं। दिए गए सही कारक चिन्ह रिक्त स्थान में भरिए और इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पर संकेत किया गया है कि किन किन रिक्त स्थानों के लिए कौन सा कारक भरना है। यहाँ पर संकेत किया गया है: कित्तूर से 9 मील दूरी पर स्थित संगोली नामक एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के एक गडरिये परिवार में रायण्णा का जन्म 15 अगस्त सन 1793 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भरमण्णा था। रायण्णा की माता का नाम चंचोबा था। रायण्णा ने अपने भाई सिद्धण्णा के संग कसरत के साथ साथ शस्त्राभ्यास भी किया। परिश्रम के फलस्वरूप कित्तूर रानी चन्नम्मा के राज्य में रायण्णा मुख्य सेनापति के पद पर आरूढ़ हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से भगाकर भारत माता को स्वतंत्रता दिलाना ही अपना परम कर्तव्य माना था। इसका उचित शीर्षक हो सकता है संगोली रायण्णा। अब गृह कार्य, एक वाक्य में उत्तर लिखना। श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? संधि का नाम लिखिए। सुरेश, अत्यंत, भावैक, दिगंत। समास का नाम लिखिए। नीलकमल, राजमहल, लंबोदर, नवरात्रि। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। बच्चों, कर्नाटक संपदा पाठ के लिए एक घटक परीक्षा का नमूना यहाँ पर दिया गया है। ऐसे 2-4 नमूना आप खुद तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे परीक्षा में लिखना और भी आसान हो जाएगा। तो मैं इसके साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।